Hello, I'm Noren Mirza, an aspiring psychologist and your host. Welcome today to Umeed Kyoran, a podcast series initiative of Colors of Hope. Today we welcome our founder Yashwadhini Ma'am, a true trailblazer in the field of special education. For this interview is the head of Colors of Hope in Jaipur. She has dedicated her career to breaking barriers for neurodiverse children. Ma'am, your work for ADHD and autism spectrum disorders awareness is truly inspiring. Before we dive deeper in our topic, I would request you all to subscribe our channel and hit the bell icon to stay notified about our next episodes. Yes, ma'am. We'd love for our listeners to hear your story. How would you describe yourself and the mission behind your work? Thank you very much, Nurain, for interviewing me. I would describe myself as a warm, patient, and affectionate human being. And the story began long ago in 2018 when I was a school counselor in many schools. I have worked in the school of many schools in Jaipur. And at that time, I realized that there were no good centers, especially for children with invisible disabilities. And that is the time I felt that we need to establish one. And there is another, a very personal and very touching story also, because during that time, I myself was going through a very, you can say, sometimes in our career, we go through an ups and downs. And that particular time in 2018 was an ups and downs in my own career. I was feeling very frustrated with what I was doing in school, getting less opportunity to get whatever I'm qualified and to share with people. And at that moment, I really felt I want to do something more than what I'm doing in the school. I wanted to do something extra, but I did not have the courage and I did not know how to go about. Although I was trained in Delhi to open my own center and everything, but that confidence was not coming in me. And I used to go to a dargah which was very near to my house very frequently and sit and listen to Qawwalis. And from there, I just told Baba in my heart, I don't have the courage. How do I go about? And I still remember when I used to drive down from school back home, I felt that there was somebody holding my hand. I cannot say because it is a dargah, so it's a Sufi saint. I cannot say I saw that man, but I feel as if somebody was holding my hand. जब कोई बच्चे का हाथ जैसे पकड़ते, जब छोटा बच्चा पहला कदम लेता है, तो मेरी उंगली पकड़ी गई थी. मुझे कहा गया था कि ये चीज करो और आप ये चीज चालू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और वो जो इनविजिबल सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डूबी हुई हूँ, मैं मेडिटेशन खुद से बहुत करती हूँ, इन चीज़ों में बहुत मान्यता रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई कह रहा है कि आप चालू करो. और वो चीज़ सोच के मैंने अपना खुद का सेंटर स्टार्ट करा. तो आई विल अभी भी आज तक मैं सैयद साहब की दरगाह, and I feel that he was the one who told me to start. So this is a personal story and a professional journey which started in 2018, and that's how I established my center in November 2018. The mission behind my work and working with children for such a long time, I have realized that there is a lot of taboo in society. People do not accept children with special needs very easily, and many people and many parents, schools, educationists, they want to hide, especially when we are talking about invisible disabilities. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ. देयर इज अ वेरी बिग मिशन विच आई हैव इन माय लाइफ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक आई विल वर्क ऑन मेकिंग इंडिया इंक्लूसिव, bringing more and more people awareness and understanding and acceptance towards children with neurodiverse children and children with invisible disabilities. So yeah, very heart touching story you have, ma'am. So I'll be starting with my questions now. So, ma'am, you have used the word neurodiverse. Can you explain the difference between neurodiverse and neurotypical? Yeah. So, neurodiverse children basically, when earlier we said it was only children with autism spectrum disorders, but now we include specific learning disabilities, autism spectrum disorders, and ADHD. All these children come under the word neurodiverse.
and neurotypical, which means all people who do not have these diagnoses. So that's the difference. So the new terms which we are using are neurodiverse because it is more like a neurodiversity movement is there. We are talking about acceptance, we are talking about inclusivity all over the world, and that's how this term was coined, neurodiverse children, because we are not taking these different disabilities as disabilities, but we are taking them as unique individuals themselves. Okay. Colors of Hope is an interesting name. Could you tell us how you come up with this name or this topic? Yeah. So when I was thinking of establishing my own center, at that time I thought about colors. I'm a painter. I love painting. I'm a very creative person, and I still remember my mother telling me, "You remember everything by color." So if she told me bring this, or if I had to tell her, I would say it is a blue color book or a pink color, something. So for me, colors are very important. That's my own personal story. And how I look at colors is, जैसे कोई बाग में अलग अलग फूल होते हैं, उनके रंग अलग अलग होते हैं, उनकी शेप अलग अलग होते हैं, उनकी कलर अलग अलग होती है, उनका फील अलग अलग होता है, उसी तरीके से हमारे बच्चे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं वो सारे अलग अलग हैं. देयर यूनिक कैपेसिटीज होती हैं उनमें, कुछ ऐसी खूबियां जो हटके होती हैं. तो मैं उन कलर्स को, मेरे बच्चों को एक कलर्स के से उनको मेटाफोरिकली कनेक्ट करती हूँ, उस तरीके से मैं कनेक्ट करती हूँ. और होप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम हमारे बच्चों की कुछ चैलेंजेस होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो हम होप की तरफ, उम्मीद की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और इसीलिए मैंने कलर्स ऑफ होप ये नाम रखा है. Okay, this is very correct. You said that everyone has their own capacities. So yeah, I know someone who had dyslexia. Okay. So he was low in studies, but he has very sharp mind, and like sports, when he was very good. Other activities, he used to catch things very quickly. Okay. So yeah, that is relatable. Okay. What is invisible disability, and how is it different from visible disabilities? Yeah. So जैसे विजिबल डिसेबिलिटीज हम बोलते हैं, तो विजिबल डिसेबिलिटीज होती है जो आप शारीरिक रूप पे देख के बच्चे को बोल सकते हैं कि कुछ तकलीफ है. देर आर मेनी ऑफ देम, बट मैं कुछ आपको जो ऑडियंस उससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, जहां पे बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है. मैं उसके लोअर मतलब जो ऐसे क्लासिफिकेशंस बता रही हूँ जहां सेल्फ हेल्प, जो हम डे टू डे लाइफ की चीजें नहीं कर सकते. सेरेब्रल पॉलिसी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिनको आप शक्ल देख के या फिजिकली देख के, उनके चलने के तरीके से देख के बोल सकते हैं कि बच्चे में कोई तकलीफ है. इनविजिबल डिसेबिलिटीज में आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज लाइक डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया. लर्निंग डिसेबिलिटीज के बहुत अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विथ हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, जहां पे आईक्यू अच्छी होती है, बिकॉज ऑटिज्म एक पूरा रेंज है कमिंग फ्रॉम लो टू हाई फंक्शनिंग. देन कम्स गिफ्टेड चिल्ड्रन, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम. ये सारे बच्चे उसमें आते हैं जहां पे उनकी शक्ल देख के, या कहीं पे अगर आप शादी में जा रहे हैं या कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें इनविजिबल डिसेबिलिटी है, क्योंकि उनको शक्ल देख के हम नहीं कह सकते कि उन्हें कोई तकलीफ है. बट देर आर कॉग्निटिव चैलेंजेस, देर आर सोशल चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. वहां पे सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? Okay. What is the biggest challenge you faced in the current education system for children with the invisible disabilities, and what are your suggestions for that? Right. The biggest challenge we face for invisible disabilities is, like I said, it is not visible. So many times schools are there and parents, there are a lot of myths surrounding it. So what happens is, कई बार schools बोलते हैं कि बच्चे को parenting सही नहीं हो रही, बच्चा tantrums बहुत थ्रो कर रहा है, पेरेंट्स बोलता है कि बच्चा जानबूझ करके मुझे परेशान कर रहा है, वो बिगड़ा हुआ है,
उसके दादा दादी ने बिगाड़ दिया, दादा दादी बोलते मदर ने बिगाड़ दिया. सो इट्स लाइक अ ब्लेम गेम काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग एवरीवेयर. मेनी टाइम्स द चाइल्ड इज टोल्ड कि ये लेजी है, यही बच्चा ऐसे करता है, दूसरे सारे बच्चे ऐसे नहीं करते. That is because invisible disability does not show like a visible disability, right? So that is one of the problem. There are a lot of myths surrounding the current education system. The problem is that there are a lot of schools and education institutions which are not in favor of mass testing, academic testing, assessments for these children. Why? Because the school feels कि हमारे बच्चे अगर आइडेंटिफाई हो गए तो पता चलेगा कि इतने सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे स्कूल के ऊपर आएगा. तो मैं यहाँ पे सारे स्कूल्स, नॉट ओनली जयपुर में बट अक्रॉस द कंट्री, आई एम एड्रेसिंग ऑल द स्कूल्स दैट इफ योर चिल्ड्रन इन द स्कूल्स आर डायग्नोस्ड with invisible disability, it is not the fault of schools, because invisible disability is not because a school is not teaching properly. The main reason is it is a neurological problem. So it comes through genetics. For autism, it is one of the reasons is genetic mutation. Till today, a proper reason for autism has not been able to been discovered, and most of these disabilities are neurological. Because they are neurological, किसी की गलती नहीं है, कोई पेरेंट की गलती नहीं है और कोई स्कूल की गलती नहीं है. So we should not be against testing. बल्कि if you do testing, then if you do assessments, we can help more and more children. So this is one thing I feel, that lot of teachers, heads of institutions, principals, everybody needs to be aware about it and needs to understand these things rather than hiding them कि हम इन चीजों को नहीं आने देंगे. दूसरी चीज, अभी सीबीएसई ने बोला there should be one special educator in every school. एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए. लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे सबसे. एक स्कूल में, जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, अराउंड 3,000 से 4,000 बच्चे होते हैं. मान लीजिए 1,000 से 2,000 बच्चे भी हैं, तो एक स्पेशल एजुकेटर वो चीज क्या उन बच्चों को पढ़ा सकता है? हम नहीं बोल रहे कि सारे बच्चों को इनविजिबल डिसेबिलिटीज हैं या स्पेशल नीड्स हैं, लेकिन अगर आप टेस्टिंग करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तो मान के चलें कि 100-200 बच्चों को तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज इसका रेंज भी बहुत बड़ा है. अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज डिसलेक्सिया. ऑटिज्म और सारा मिला दे तो काफी सारे बच्चे हैं जिनको दिक्कतें हैं. तो कोई स्कूल ये नहीं कह सकता कि हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो चीज सच्चाई नहीं है. तो एक स्पेशल एजुकेटर जस्टिस नहीं कर सकता. मैं मानूंगी कि हर स्कूल में एटलीस्ट मिनिमम 4 से 5 होने चाहिए. मिनिमम मैं कह रही हूँ, मैक्सिमम नहीं कह रही हूँ. तो मैं यहाँ पे सबको एड्रेस कर रही हूँ. ऑडियंस में सारे लोग हैं, स्कूल्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सब मुझे सुन रहे हैं. और मैं चाहती हूँ कि मैं जो सारी बातें बोल रही हूँ, आप घर जाके इनके बारे में सोचिए, क्योंकि ये चीज हमें एज फाउंडर्स we need to talk about it. These are the practical problems that we are facing in society today. Okay. Yes, ma'am, very correct. Like, as my personal experience, when I was in my school, we had a teacher for first to fifth classes. She used to take, like, sort some children जिनको ज़्यादा need हो. She used to take them and like teach them separately, and Remedial classes yeah, or something like that you would have, remedial right? classes, special classes, and but we didn't have it for like 6 to 12. Okay. That facility was only for first to fifth standard. So it was only basically primary and middle school. Yeah, only right, primary school. right. Not even Okay. beginning of middle school. Yeah. Right. When I talk about autism, I have heard some people say eye contact should not be established in a child with autism. So, what is the controversy you can throw light on? Yeah. So, सबसे पहले जब हम ऑटिज्म के बारे में बात करते हैं, तो अगर पूछा जाता है किसी से कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, तो मोस्ट पेरेंट्स कहेंगे कि हमारा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता. मुझे यहाँ पे आई कांटेक्ट के रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, और जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं. पहले बोला जाता था कि
अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता तो उस बच्चे को ऑटिज्म है। तो मुझे यहाँ पे आप सबको कुछ क्लैरिटीज देनी है। पहली बात, हर बच्चा ऑटिज्म वाले को आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे और कुछ बच्चे करेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं आपको देखती हूँ, राइट? तो जब मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन जब ऑटिज्म वाला बच्चा आपको देखता है या आप उसे देखते हैं, they try to avoid eye contact. तो वो आई कांटेक्ट इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि पहली बात, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जब आप उन्हें देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको अंदर से देख रहे हैं। You're judging them, sir. नॉट ओनली जजिंग, आप डीप लुक दे रहे हैं। तो दे फील ओवरवेलमिंग, दे फील अननर्विंग, उनका वजूद हिल जाता है और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील करते हैं। बिकॉज हम पहले समझें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वाले जो बच्चे हैं, वो थिंक, एक्ट और फील डिफरेंटली करते हैं। हमसे वो डिफरेंट हैं, वो यूनिक हैं। उनका सोचने का, समझने का और अंडरस्टैंड करने का दुनिया का सिस्टम अलग है। मतलब जो हमारी जो नजर है वो उन्हें डिस्कम्फर्ट प्रदान करती है। इसलिए हम एक्सपर्ट्स अब बोलते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वाले स्पेसिफिकली बच्चों को आई कांटेक्ट फोर्स नहीं करना चाहिए। जो थेरेपिस्ट मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पे, हम अगर उन्हें फोर्स करते हैं, दिस इज नॉट माय पर्सनल एक्सपीरियंस as an educator, being a special educator and a psychologist in this field for so many years, लेकिन मुझे कई पेरेंट्स बोलते हैं कि जब उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए बोलते हैं उन बच्चों को, तो बच्चे में बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन होते हैं। इट्स अ टेक्निकल वर्ड, जहां हम हिंदी सिंपल फॉर्म्स में बोलेंगे टैंट्रम थ्रो कर रहा है बच्चा। बच्चा बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट प्राप्त करता है। और जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनको ऑटिज्म होता है, अगर बच्चा कंफर्टेबल होगा आपसे तो आई कांटेक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएगा वो। बट ये वाली चीज हमें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज बच्चे में फोर्स करते तो हम सोचें कि हम उसकी इंसानियत के ऊपर क्वेश्चन डाल रहे हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं फर्स्ट। न्यूरोडाइवर्स बच्चों को न्यूरोटिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें एक दुनिया ऐसी बनानी है जहां पे हम उन्हें अंडरस्टैंड करें और एक्सेप्ट करें। कुछ चैलेंजेस हैं, उस पर हम काम करें। पर आई कांटेक्ट ऐसी चीज है जो बच्चे को हिला देती है, और मैं पर्सनली बोलूंगी कि प्लीज आप उसे फोर्स नहीं करिए। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में दे आर नॉट इन फेवर ऑफ एस्टैब्लिशिंग आई कांटेक्ट। थैंक यू वेरी मच। Okay. If you had to pick one color from the spectrum that captures your personal motto and energy right now, what would it be? I would pick my favorite color, white, because white is an amalgamation of all the colors. And for me, all my children are all the colors. Okay. Beyond the daily operations of centers, what is the core mission that defines your work life? Yeah, the core mission, like I already mentioned earlier, is to break taboo in society, to bring about more understanding and acceptance, and to make India inclusive. Okay. So, very busy life you have. So, tell us about one thing that brings joy in your daily schedules, busy schedule. Yeah, in my busy schedule, when I'm teaching classes or when I see my therapist teaching, and I find the child has joy. You know, every day of those special needs classes is a unique moment, because एक दिन बच्चे ने कुछ चीज सीखा है और वो बहुत खुश है, या उसके अंदर एक पर्टिकुलर दिन में एक बच्चा है हमारे पास में जो डॉग है, I have a dog and he's very scared of that dog. And we realized that one day he was not scared. He just walked in. That was one day when he said कि इस dog को यहाँ से ले मत जाओ. वो चला, वो बैठा. You know, those small छोटे छोटे moments जो हम अपनी life में experience करते हैं बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे, those are very precious moments. हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है. हमारे लिए बच्चों के एग्जाम्स में मार्क्स कितने आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब वो कोई पर्टिकुलर स्किल सीखता है या कोई चीज सीखता है और किसी कारण वो बहुत हैप्पी होता है और वो अंदर से बहुत खुश होता है, वो चीज हमारे लिए बहुत, मेरे लिए स्पेशली, और आई थिंक सो मेरे स्पेशलिस्ट भी अग्री करेंगे इस चीज के लिए,
वो बहुत ज्यादा हैप्पी फीलिंग होती है. Okay. So you get joy when you see that the children हम्म. जिस चीज से आपको उनको ओवरकम करना था, they have overcome there or they are trying. Right. Okay. So as someone who teaches self-regulation and emotional strength, where do you personally turn to refuel yourself when the journey gets demanding? Yeah, so I mentioned earlier, I'm into spirituality and I do my meditation. So my regular meditation really helps me out. Okay. As we wrap up this conversation, if a listener is sitting in a difficult moment right now, what is the one thing you hope that they carry away from your story? The one thing I tell everyone, especially a new parent who has been diagnosed, their child has been diagnosed with ASD or ADHD or any of the diagnoses. सबसे पहली बात है कि आप घबराइए मत. रिसोर्सेस बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग हैं. मैं खुद एक मदर रही हूँ. मेरे बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, ADHD एंड ही वाज ट्वाइस एक्सेप्शनल. तो मेरी खुद की अपनी एक जर्नी रही है. और एक पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम हम करते हैं वंस अ मंथ, वन सैटरडे इन मंथ. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप सारे पेरेंट्स प्लीज उसके साथ में जुड़िए. हमारे कई सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं. वी आर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक. वो सारे लिंक्स अभी हम आपको बता देंगे. वो सारे लिंक्स के साथ में आप फॉलो करिए एंड वी कीप ऑन अपडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन. व्हाई आई एम टेलिंग यू इज, क्योंकि जब मदर के पास डायग्नोसिस आता है और क्योंकि हमारी सोसाइटी में टैबू बहुत ज्यादा है, स्टिग्मा बहुत ज्यादा है, तो वो मदर या वो पर्टिकुलर फादर किसी से बात नहीं कर सकता. वो अपने पेरेंट्स से बोल नहीं सकते, अपने फ्रेंड से बोल नहीं सकते. उन्हें लगता है कि मेरा बच्चे की लाइफ तो अब खत्म हो गई. और अनफॉर्चुनेटली कई बार मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स भी काफी नेगेटिवली बोलते हैं इस चीज के बारे में. तो क्या होता है कि पेरेंट को बहुत ऐसा घबराहट होती है कि मैं क्या करूं. तो मुझे यहाँ पे आपको सबको बोलना है कि आपके सारे दरवाजे बंद नहीं हुए. हमारे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं. और आप हम लोगों के साथ में जुड़िए और आप अकेले नहीं हैं. मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगी. मेरे बच्चे का जब डायग्नोसिस हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे का डायग्नोसिस काफी लेट हुआ. ADHD डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो गया बचपन में. ASD डायग्नोसिस बहुत लेट हुआ बिकॉज वो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट था. हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के बारे में अभी भी इंडिया में काफी कम काम है और हमें काम करने की आगे बहुत जरूरत है. और क्योंकि इंटेलिजेंट था तो डायग्नोसिस भी काफी लेट हुआ. मैं बिकॉज देर इज अ पर्सनल स्टोरी अटैच टू इट एंड मे बी वी कैन टेक इट अप इन द नेक्स्ट एपिसोड. बट मैं आपको थोड़ी सी चीज उसके बारे में बताऊंगी. कि मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी. कॉन्फ्रेंस वाज हैपनिंग इन अमेरिका एंड मैं इंडिया से अटेंड करती हूँ उसको काफी रेगुलरली. और तब मैंने बहुत बड़े बड़े लोग जैसे कि बॉलीवुड हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं और व्हाइट हाउस से कोई लोग हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से काफी सारे लोग हैं. उनको अपने लिविड एक्सपीरियंसेस मतलब कि अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में सुना. वो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस बेसिकली सिर्फ जब वो सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो लोगों की अपने एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे अपने बच्चों के बारे में. कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं हमको ADHD है, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमको ASD है, कुछ लोग बोल रहे हैं. दिस लेडी फ्रॉम द व्हाइट हाउस, शी सेड कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी एक सिबलिंग है, मेरी एक सिस्टर है जिसकी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत स्पेशल नीड्स के इश्यूज थे. और मैंने बहुत ज्यादा मतलब मेरे खुद के बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मुझे भी ऑटिज्म है. और ऐसे बहुत अलग अलग लोगों ने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ स्टोरी बोली. मैंने वो प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम था और क्योंकि वो कैलिफोर्निया में हो रहा था तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ 12 आवर्स डिफरेंस. और उस 12 आवर्स डिफरेंस में मैं कई बार सुबह 4 बजे भी उठी हूँ उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और सुनने के लिए. और तब मैंने रियलाइज करा कि मैं अकेली नहीं हूँ. उस प्रोग्राम का बेस्ट पार्ट मुझे पता ये लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे प्रोफेशंस में हैं, सक्सेसफुल लोग हैं
और वो सब हैं। और क्यों, even though I was sitting in India and in California, it's thousands of kilometers far away, still मुझे ऐसा लगा कि लोग हैं मेरे साथ। और यही चीज मैं अपने सारे ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली पेरेंट्स को, कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में भी बहुत सारे पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको कई सारे पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उसके साथ जोड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे। हम एक कम्युनिटी है, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। Welcome, ma'am. One key message that you would like to give to our viewers? Yeah, the key message is, I want to tell everybody, especially parents, specifically parents, and of course the educationist and everyone, please love your children and accept them as they are. आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं जैसे हैं। अभी यहाँ पे अभी क्या ठीक करने की होड़ है कि हमें ठीक करना है बच्चे को। बच्चा ह्यूमन बीइंग है, सबसे पहले उसे ह्यूमन बीइंग रहने दीजिए। उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कैपेसिटीज हैं, उस चीज को हम एक्सप्लोर करें। कुछ मदर्स कहती हैं कि मेरा बच्चा एक्सेप्शनली क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, इतना क्रिएटिव है कि पूरा घर में फैलावा करके रखता है। तो मैं अपने बच्चे को डांट देती हूँ कि तुम्हारी क्रिएटिविटी बंद करो। मैं उसी मदर को बोल रही हूँ कि प्लीज, आपका बच्चा यूनिक है, क्रिएटिव है। अगर वो फैलावा करता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसकी क्रिएटिविटी प्लीज बंद मत करिए। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं और उनको अलग अलग ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास में, उन सब के पास मत भेजिए, क्योंकि ये जो एरियाज जहां हम डील कर रहे हैं, स्पेशल नीड्स, इसको थोड़ा साइंटिफिकली हमें समझना है। एस्ट्रोलॉजर के पास में जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। इसलिए मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे, दे आर नॉट गिनी पिग्स कि कभी हम कुछ करवा दें, ये नहीं चल रहा तो कुछ और करवा दें, ऐसा नहीं करना है। उन्हें साइंटिफिकली उस चीज को समझना है। हमारे जैसे एक्सपर्ट्स के पास में जाइए। इफ यू आर नॉट इन जयपुर, वी आर ऑल्सो गिविंग सर्विसेज ऑनलाइन, and if you are already taking those services, please go to the experts wherever in the country you are and talk to people in the field of special education, mental health and psychology, uh, professionals and special educators. Don't go here and there searching for solution, because that is not going to happen. Thank you very much, audience, for listening to me and being very patient up till now. Yes. As you said, फैलावा करते हैं बच्चे. So you mean someone like Ishan Awasthi from Tare Zameen Par? Right. So Ishan Awasthi had dyslexia, and it comes under invisible disability, and that is what Colors of Hope deals with. तो वो क्या होता है कि माइंड में इतनी क्रिएटिविटी होती है, इतनी ज्यादा, तो फिर बच्चा क्या सिर्फ फोकस हो जाता है कि मुझे ये पर्टिकुलर ड्राइंग बनानी है, ये कार्टून बनाना है, या फिर मुझे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई डॉल बनानी है, उसके कपड़े बनाने हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है, तो वो भूल जाता है। हाँ, हाँ, तो वो इतना डीप चले जाते हैं दैट दे फॉरगेट। तो वो उसके थोड़े नेगेटिव हैं, बट उसके तरफ से भी वी कैन वर्क ऑन द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड। सो अगर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में काम करते हैं, मतलब हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स प्रॉपर करते हैं, हम उसे डांटते नहीं है कि तुमने इतना फैलावा करा, उसको ठीक करो। हम उसके साथ साथ में करते हैं। साइकोलॉजी में हम बोलते हैं पैरेलल प्ले, मतलब आप साथ साथ में मिलके चलो, कि अपन साथ उठाएंगे, साथ इस चीज को रखेंगे। देयर इज अ टाइम टू, स्मॉल बच्चों के साथ, हम छोटे छोटे बच्चों के साथ बोलते हैं टाइम टू पुट थिंग्स बैक, यू नो, टाइम टू रैप अप। सो वो चीज भी हम कर सकते हैं, उसको प्ले की तरह, उसको एक्टिविटी की तरह, कि सारी चीजें वापस समेट के रखना है। तो ऐसे कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की क्रिएटिविटी को हमें खत्म नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। Okay. Thank you very much, Yashwadni ma'am, for such an inspiring story and knowledgeable discussion. Viewers, stay tuned with us for the release of a second episode with latest information about neurodiverse children and more knowledgeable discussions. Don't forget to subscribe. Thank you.